So the question is there any formal methodology of finding out whether you are creating value or you are not creating value? So first of all, let us understand what is the meaning of value creation. Will somebody like to tell me what do you understand by value creation? And I'm sure all of you must be aware that the whole world today is talking in terms of ESG, environment, society, and governance. The whole world is talking today of three P's. And what are three P's? People, profit, and planet. The whole world today is talking of 17 SDG. And what the SDGs are? SDGs are 17 Sustainable Development Goals brought out by not the government of India but by UNGA, UN जनरल असेंबली के गोल्स हैं कि 2030 तक पूरी दुनिया ने ये 17 गोल्स को अचीव करना चाहिए एंड दीज गोल्स आर नथिंग बट वैल्यू क्रिएशन. So can somebody tell me as to how would you understand value creation? In terms of like an value can be created in terms of materials, peoples and machines, means the inputs which we are being trying to use into the Absolutely. any manufacturing businesses. Absolutely. And those could be measured like, and they are being supposed to given some kind of an output, Right. but instead of like when we measure that output based on those inputs, and if we are being increasing the value of the output from the expected standards Right. to a certain next level, Mhm. it means that we are adding the value Absolutely. to the output Absolutely. by having some changes into my input methodologies. That is Absolutely. what my understanding. Please join your hands, give them a big round. Very good. Sir, you are absolutely right. From the perspective of internal working of a business per se, value creation is very simple, and that is what we all need to remember. And I will tell you very simple methodology how to figure out whether you are creating value or not creating value. Just put yourself into the shoes of Jamshedji Tata. Just imagine what was going on in his mind when he was thinking of setting up steel plant in India in 1902 and he was dying in 1904. And देखिए गजब की बात कि उनके जाने के बाद भी वो स्टील प्लांट फिर भी बना. तो वैल्यू क्रिएशन का मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एट द ग्लोबल लेवल इज सिंपल एंड दैट इज टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर planet to live today than what it was yesterday. So that is value creation. So आप आपके बिजनेस में मैं मेरे बिजनेस में क्या कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये दुनिया ये planet today it is going to be a better place to live than what it was yesterday. And this is what all those 17 sustainable development goals and everything is all about actually. अब याद रखिए क्यों ये ज़रूरी है. ये इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारी ज़िंदगी में वी कैन हैव अ प्लान ए, और अगर हमारा प्लान ए फेल हो गया तो वी कैन हैव अ प्लान बी. बट रिमेंबर वी ओनली हैव प्लानट ए एंड वी डू नॉट हैव प्लानट बी. सो अगर हमारा प्लानट ए फेल हो गया तो इसका मतलब हम सब फेल हो जाएंगे. सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी का यही मतलब है कि ज़रूरतें हमारी भी पूरी हों और हम इस प्लानट को इस तरह से छोड़ के जाएं कि आगे आने वाली जनरेशन्स की भी ज़रूरतें पूरी हों. एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट. अच्छा, इसको मेज़र करने का पहला तरीका तो ये है कि अब वो तो आपको समझ में आएगा. आर यू डूइंग समथिंग विच इज़ मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव? यू कैन फिगर इट आउट. दूसरा तरीका ये है कि टेक्निकली फाइनेंशियली आपका जो बिजनेस है, ध्यान से सुनिए, आपके बिजनेस में आपने कैपिटल लगाई है. यस और नो? अब मुझे मालूम है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपका आंसर ना होगा. आपको मालूम है कि जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है उसकी कॉस्ट क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू विल नो कि द मनी दैट यू हैव पुट इनटू योर बिजनेस उसकी कॉस्ट क्या है? हमको नहीं मालूम. अब हमको अगर ये मालूम नहीं कि हमारी कॉस्ट क्या है तो फिर हमको ये भी नहीं मालूम होगा कि हमको कम से कम कितना कमाना चाहिए. तो हाउ डू यू फिगर आउट इन फाइनेंशियल टर्म्स कि आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ ऑल ऑफ यू. सो वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड
मतलब क्या? मतलब ये कि आपने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है उसकी क्या कॉस्ट है। तो समझो जो आपने कैपिटल की जो कैपिटल आपके बिजनेस में लगाई है उसकी कॉस्ट 15% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने बिजनेस में कम से कम आपकी कैपिटल पर कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए? कितना जमाना चाहिए? एवरीबॉडी 15%, मोर देन 15%। अब उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, है ना। तो आपने कैपिटल लगाया बिजनेस में, जो मनी जो आपने बिजनेस में लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। यस और नो एवरीबॉडी? सिंपल सी बात है, आपने 10 करोड़ का पैसा आपके बिजनेस में लगाया, इसका मतलब आपने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी है? 10 करोड़। सो दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने करी है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? जो मॉर्निंग में आपसे बात कर रहा था कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है। जब आप बिजनेस चालू करते हो, पैसा लगाते हो, तो खाली ये सोच के पैसा लगाते हो कि मुझे पैसा लगाना है, या फिर दिमाग में ये भी रहता है कि कम से कम इसके ऊपर इतना कमाना है? यस और नो? राइट? तो कितना आपने कमाने का सोचा है? समझो आपने 15% कमाने का सोचा है कि भाई ये जो मैं कैपिटल लगा रहा हूँ इसके ऊपर मुझे कम से कम 15% तो कमाना ही कमाना है। अब आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें आप कमा रहे हो 13%। गुड साइन और बैड साइन? बैड साइन। क्यों बैड साइन? बिकॉज इसको फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं EVA। EVA यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और कैसे कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड? ROCE माइनस COCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब अगर आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, गुड साइन और बैड साइन? सर गुड साइन और बैड साइन है ना? गुड साइन। सो दैट मीन्स अगर आपकी जो रिटर्न है कैपिटल के ऊपर वो 20% है और आपकी कैपिटल की जो कॉस्ट है वो 15% है, इसका मतलब आप 5% का वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, राइट? सो दैट मीन्स यू आर एडिंग पॉजिटिव वैल्यू इन फाइनेंशियल टर्म्स। अगर इसका उल्टा है कि आपकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 15% है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 20% है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स you are not creating value, you are destroying value by how much? 5%. So this is how, sir, you can figure out whether you are creating value or you are not creating I value. still have a confusion. Please. When we